very disciplined Soha when it comes to meat and everything. But our conversation today, I was just setting context. We are a very carb pasand dish. Okay, हमको carbs बहुत अच्छे लगते हैं. Protein हो गया तो very nice, you know. But I know that you're very mindful about your protein. So can you share with our audience just a little bit about what is it that your diet looks like? My diet actually, मैं बचपन से काफी डिसिप्लिन रही हूँ डाइट के मामले में. I feel like maybe that's come from my parents. Everybody knows my father was an athlete, of course. My mother was in films. तो और हम सबको शौक था to be fit, active. Games खेलते थे हम. I know now today's generation doesn't even get an opportunity to play outdoors, but we used to play outdoors after school. And diet के मामले में I've always wanted to eat a balanced diet. तो ऐसा अभी मैं सोचती हूँ कार्ब्स, प्रोटीन, फैट. पहले तो हम बस देखते थे कि रोटी, सब्जी, राइस. अभी बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाते हैं कि there's a pyramid, you should have a colorful plate, it should have all the colors, and these colors represent certain vitamins and minerals and all of that. So now I understand, and now at this age in my life, मैं आपको बताना चाहती हूँ, in my 40s, I've understood कि प्रोटीन कितना important है for muscles, because we lose so much muscle as we get older. And I believe that protein is what helps you with your lean muscle and with muscle recovery, with strength, with immunity, with all these things. So that's why protein has become even more important in my diet. I'm of course a non-vegetarian, so I managed to get it from animal protein, but also there's so many vegetarian sources of protein. And of course, that's why we're here today, because of Badam Pe Charcha, is nuts, and badam is one of the primary sources of vegetarian. इनफैक्ट इतने बड़े कमिटमेंट तो मैंने कर दिए आप लोगों के सामने कि कार्ब पसंद देश, हमको प्रोटीन ऑप्शनल एंड एवरीथिंग. बट वी आर फॉर्चुनेट, वी हैव अ न्यूट्रिशनिस्ट ओवर हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने डींगे मारी है या ये वास्तविकता है? पहले आप वो क्लैरिफाई कर दीजिए. As rightly said, obviously India is a very carb loving country. In fact, even if you are non-vegetarian, हम शायद हफ्ते में एक ही बार non-veg खाते हैं या अंडा कभी खा लिया. So even if you are non-vegetarian, we are still eating a vegetarian diet. And in fact, after many years, हमारी ICMR, which is the Indian Council of Medical Research, और NIN, which is the National Institute of Nutrition, Hyderabad, जो हमारी सारी guidelines लिखता है diet के बारे में, it has recently revised all its guidelines and specifically come out in 2024, जिसमें ये बताया गया है कि protein deficiency बहुत ही rampant है इंडिया में, and protein is one of the major macronutrients जो कि हमें खास देखना है कि हम अपने डाइट से ले पाए. एंड जनरली टू टेल यू कि हम जैसे लोग जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, हमें कितना लेना चाहिए. सो द रिकमेंडेशन इज 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, जो कि अंदाजन 50 से 60 ग्राम प्रोटीन हम सबको चाहिए. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज नाउ बीइंग टोल्ड इज कि जहां तक हो सके इसे आप नेचुरल सोर्सेज से लीजिए. So if you can get it from the non-vegetarian sources like anda hai, non-veg hai, but vegetarian, and of course 60 to 70% of the population is vegetarian, तो हमें vegetarian sources से देखना पड़ेगा हमें प्रोटीन कहाँ से मिलता है. So of course दालें हैं, which is very very good source, but nuts and seeds are very good source, जिसमें बादाम is considered to be, in fact उसमें specifically mention भी किया गया है कि बादाम can be one of the very good healthy sources of protein. और जब हम एक मुट्ठी बादाम खाते हैं हमें 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है. So अगर आप natural whole proteins ले सकें अपने डाइट में, तो you should be able to get it from all the vegetarian and the non-vegetarian sources. So that's something which is very interesting and now being documented in our Indian guidelines also. That's really comforting to know. Point of the matter is dabbe dubade aahe, but when you have whole available sources at your disposal, why not go with that route? I think it's going to be cheaper also. Okay. Yasmin ji, I just wanted to, given your dedication all these years towards fitness and everything, and since today we are really trying to identify this whole protein gap, I want to understand from you, the pre-workout and post-workout, how important is protein, and what are the things that one can do to kind of optimally work out or to the best of our advantage? Because right now everybody is all suddenly onto the fitness thing, which is a great thing. Where there's either home gyms or we're actually going to studios and everything. So could you share a little bit about that? तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज तो सब लोग करते हैं और बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि व्हाट डू आई ईट बिफोर अ वर्कआउट, व्हाट कैन आई ईट आफ्टर अ वर्कआउट. और नॉर्मली जो लोग खाते थे या एक इडली खाते थे या बनाना खाते थे,
बट फॉर मी आई लव ईटिंग अ बनाना बिफोर अ वर्कआउट, मगर बनाना के साथ मैं कुछ बादाम भी खाती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक जो फ्रूट होता है वो अपनी बॉडी में बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो 20 मिनट में वो फ्रूट कहाँ गया पता भी नहीं चलता है। मगर जब हम बादाम खाते हैं कोई भी फ्रूट के साथ, स्पेशली बनाना, एंड मेरी फेवरेट कॉम्बिनेशन है क्योंकि इतनी आसान है, बनाना कहीं भी मिल सकती है, banana and I always have badam with me. So banana and badam, because badam slows down the absorption of banana in your body, so you get energy for longer. So for me that is the best combination. और बहुत टाइम होता है कि आई फिनिश माई वर्कआउट, मैं अपनी बात कर रही हूँ, आई फिनिश माई वर्कआउट और मेरी नेक्स्ट क्लाइंट या नेक्स्ट क्लाइंट वेट कर रहे होते हैं, एंड आई डोंट गेट टाइम टू इवन हैव अ प्रोटीन शेक, यू नो, बिकॉज but I'll have a few badam. So for me, it's also a great post-workout snack, because एक तो बादाम हमें ऐसे महसूस करता है कि हम लोग फुल ज़्यादा टाइम तक रह सके, it gives you satiety, and also वो चबाने में, you know, I mean a shake is something जो हम डायरेक्टली पी लेते हैं, मगर बादाम वो चबाने में बॉडी को भी सिग्नल्स मिलती है कि खाना आ रहा है, कुछ आ रहा है खाने को, तो डाइजेशन शुरू हो जाती है. So I think for that also, and I love the crunch of badam. So that's my go-to snack. But I have to say that, and I'm not just saying it because we're here talking about badam. I really feel that why I associated with this with badam, with almonds, is because there's a natural association. Because I enjoy snacking, and I understand कि सिर्फ breakfast, lunch, dinner से नहीं होता है, और बीच में कुछ खाने का मन होता है, लेकिन sometimes I feel कि वो क्या खाओ, 10:30 बजे लंच और डिनर के बीच में 4 बजे 5 बजे जब भूख लगती है, but it's too early for a meal. What is a healthy snack where my blood sugar doesn't spike, where I feel like I'm having some good source of protein, which I understand is so important for my immunity, for my muscle building, and that's when I turn to badam. And it's not just for me, it's also for my daughter. Just we were discussing कि I'm thinking कि of course अम्मा मुझे बताती थी जब मैं छोटी थी कि बादाम खाओ, इसीलिए मैं इनाय के साथ भी सेम करती हूँ. और क्योंकि बचपन से I introduced her to the taste of badam, which I actually like in its raw form. She also loves eating just raw badam, just a handful of badam. Sometimes she likes salted badam. So I try and control the salt because I understand salt is not so good, but roasted, dry roasted. And at night also, every night, she'll have her dinner at 6 o'clock, and then she gets into bed at around 7:30, 7:45. And then she's like, I'm feeling hungry, Mama. And I'm like, now you can't eat anything because it's time to sleep and your blood sugar will go up and you won't sleep well in your digestive system, etc., etc. And then Rashmi Didi, her and I have a thing where we say, how many badams? Okay, how many allowed? And she'll be like 5, and I'll be like 2, and then she'll be like 3. And then and then we eat some badam, because I also know, we've had so many discussions, it doesn't interfere with your sleep. It doesn't spike your blood sugar. It's a perfect snack to have also when you feel hungry before bedtime. So this is my go-to snack. You don't have to refrigerate it. It stays for years. You know, so I feel like even when you buy it in bulk, you can keep it. So for so many reasons, it's the perfect snack for me. Ready? Yes. Yes. About the almonds and today's discussion. आमंड खानी चाहिए. Start with Ritika. अगर और इस बारे में और भी बोले एक मिनट कंक्लूडिंग. तो बेसिकली आमंड्स आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है. इट्स गॉट अ लॉट ऑफ प्रोटीन. एक मुट्ठी भर आमंड्स अगर आप दिन में खा लो तो आपकी प्रोटीन इनटेक, जैसे रितिका ने बोला, 6 ग्राम प्रोटीन मिल सकती है. आमंड्स आपको फुल रखता है कि आपको बार बार भूख नहीं लगे. उसमें फाइबर है, मैग्नीशियम है, और फाइबर में नहीं, आज की जो डिस्कशन है, आज हमने प्रोटीन के बारे में बात की है. सो ये देखा गया है कि हमारे भारतवर्ष में वी आर वेरी वेरी कार्ब लविंग नेशन, तो हमें बहुत जरूरी है प्रोटीन के बारे में डिस्कस करने की, और ये जानने की बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोटीन है बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज से मिल सकता है. जैसे हमारा मिलेट्स हैं, दालें हैं, नट्स हैं, बादाम हैं, जो कि फ्रीली सबको मिलते हैं, लेकिन शायद लोगों को पता नहीं है कि उसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत अच्छा है. तो अगर हम अपने डाइट में इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करें ऑन अ नेचुरल वे, ऑन अ डेली बेसिस, तो हमारा जो डाइट है वो बिल्कुल ही बैलेंस्ड, हेल्दी रहेगा, और जो हमारी प्रोटीन की जो डेफिसिट है उसे हम कम कर सकते हैं.
आई थिंक यही है कि हम सब जानते हैं अभी कि हमारे खाने में हमसे न्यूट्रिशन मिलता है और कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, जो सब ज़रूरी है, लेकिन शायद प्रोटीन में हम कहीं कम पड़ जाते हैं। तो आज का डिस्कशन ये है कि अगर आप एक मुट्ठी फुल बादाम खाएं तो वो जो प्रोटीन डिफिशिएंसी जो गैप होगा आपको कम से कम 6 ग्राम तक मिल सकता है अगर आप एक मुट्ठी भर बादाम खाएं। So the idea is to spread some awareness, to spread some education, share some stories कि हम बादाम को कितना पसंद करते हैं, वो तो हम सब unanimously करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं, and to share that education with you क्योंकि काफ़ी लोग ढूंढ रहे हैं कि हमें प्रोटीन कहाँ से मिल सकता है. So this is one of the best sources of your natural protein. तो एक्चुअली आपका वर्कआउट वाला देखते हैं, हम रील्स देखते हैं, ये करते हैं, तो कितना टाइम देते हो आप दिन में वर्कआउट के लिए और कैसे करते हो, थोड़ा हमें वो मैं कैसे करती हूँ आपको कैसे दिखाऊं? रील्स पे तो आपको दिख रहा है कैसे करती हूँ. अभी मैं अपने 40s में मुझे पता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है. आई वांट टू बिल्ड माय मसल मास, आई एम यूजिंग बोन डेंसिटी. तो ये सब एक इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए, अभी के लिए नहीं. मैं सोच रही हूँ 20 साल बाद मैं खुद अपने पैरों पे चढ़ना, मतलब I want to walk, I want to play with my children, I want to do all those things. तो लॉन्ग टर्म मैं सोच रही हूँ, इसीलिए मैं अपना डाइट, अपनी फिटनेस के बारे में ज्यादा सोच रही हूँ. ज्यादा वक्त नहीं लगता है. हमें पता ही नहीं, हम इतना वो टीवी सीरियल देख देख के कितने घंटे निकल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है. स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम घंटे निकल जाते हैं. तो इफ यू प्रायोरिटाइज 45 मिनट वर्कआउट, 45 मिनट के बाद मैं अपने ट्रेनर से बोलती हूँ अभी आप मुझे पैसे दो क्योंकि अब मेरा तो हो गया है. मे बी 3 times a week, 4 times a week स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. फिर मुझे बैडमिंटन खेलने का शौक है, तो 1-2 बार हफ्ते में मैं बैडमिंटन खेलती हूँ. और आई गो ऑन वॉक्स, क्योंकि वॉक से आपको विटामिन डी भी मिलती है, उससे आपका वो मेलेटोनिन और वो स्लीप के लिए अच्छा होता है. तो आई रियली, हेल्थ इज अ प्रायोरिटी. आई थिंक अगर आप नहीं अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे तो आपको करना चाहिए. इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट. सोहा, हम आपको बहुत सालों से मतलब स्क्रीन पे भी देख चुके हैं, तो सेम है आपका वेट जो है, जो भी आपका पर्सनैलिटी है, आपने मेंटेन किया है, तो इसके पीछे क्या राज है? जैसे वर्कआउट तो है, डाइट में भी आप क्या क्या करते हो? देखिए, एक्चुअली ये सच है कि मेरा वेट सेम है, लेकिन पिछले 2-3 साल में, नॉट आफ्टर प्रेगनेंसी, नॉट आफ्टर बिकमिंग अ मदर, मे बी आफ्टर द एज ऑफ 45, सडनली 2 किलो बढ़ गया. इट कुड बी मसल बिकॉज आई स्टार्टेड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बट आई अंडरस्टैंड नाउ कि देयर चेंजेस ऑल्सो. ऐसा नहीं कि आप हमेशा एक ही रहेंगे, वैसा हो ही नहीं सकता है. लाइफ इज अबाउट चेंजिंग, एक्सेप्टिंग चेंज, इवॉल्विंग. तो नंबर 1, जो भी चेंजेस हो रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट कीजिए. डोंट फाइट इट. बी हेल्दी, बी फिट. डोंट ट्राई एंड बी जो आप कॉलेज में थे, क्योंकि वो मुश्किल है. सो नंबर 1 इज दैट. एंड नंबर 2, आई थिंक थोड़ी जेनेटिक्स भी इसमें होंगे. आप माई मदर हमेशा पिटी रही है, तो वो भी छोटी है हाइट में, और तो शायद वहाँ से आता है. और मुझे ये पैशन है कि मैं अपना ध्यान रखना चाहती हूँ, सिर्फ मेरे लिए नहीं. मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मेरे फैमिली में हैं जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है इमोशनली एंड फॉर अदर रीजंस, तो उनके लिए भी आई वांट टू बी हेल्दी. Sorry.